there's always a doubt in the mind of the sellers, whether they'll get the right price, whether they'll be getting the authentic gold jewelry or not. Person who wants to buy the second-hand gold jewelry can come to you. Absolutely, they can come to us. Who are those people who select second-hand jewelry? तो इस प्लेटफॉर्म पे मेकिंग चार्जेस का तो कोई काम ही नहीं है. You compare it to the making charges जो आपको पे करना पड़ता है. Wow. पर ग्राम आप 1000 रुपए तक पे करते हैं, मे बी मोर. यहाँ पर बीच में आपका क्या रोल होता है ऑथेंटिसिटी के मामले में? How do you make sure that this jewelry is super good for people who are buying it? एक कारण ये है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. Okay. वो जाकर अपना मार्केट में चेक कर सकता है. उसे कभी भी गोल्ड का राइट प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं. Absolutely. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कन्विंस करने में कि आप जो खरीद रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, वो बहुत सही है जो आपके पास जा रहा है जो गोल्ड. जितना पुराना सोना है उतना अच्छा सोना होता है, ऐसा हम मानते हैं और ये सच भी है. मतलब वो उतना कम माइनिंग में गया है. हम इसे माइनिंग को हम कम करते हैं. गोल्ड की जो माइनिंग है जो एनवायरमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है वो डेफिनेटली रिड्यूस होती है. कैसे बताते हैं कि ज्वेलरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आप कैसे एजुकेट करते हैं? Hi, very good morning. My name is Abhishek Gupta and today we have come to meet Ms. Shilpa Gupta, the owner of MyGoldX, to record her podcast and let's know what MyGoldX does. Hi Shilpa, how are you? Hi Abhishek. So Shilpa, we have come to record you to know everything about MyGoldX, what MyGoldX does, how do you function and everything about MyGoldX. So please, before we ask you everything, please tell us what inspired you to start MyGoldX. What inspired me exactly is I saw a gap in the market. There's a gap where transparency is not there, where we can connect the sellers of old gold jewelry with the buyers. Okay. So what we do is we bridge the gap between sellers and buyers, where they can absolutely be secure to go ahead with the transactions. Okay, so that is what made you to start MyGoldX. Yeah, there was no security, there was no transparency in the transactions. The sellers of old gold jewelry, where they can securely connect with the buyers. So there's always a doubt in the mind of the sellers, whether they'll get the right price, whether they'll be getting the authentic gold jewelry or not. So we wanted to bridge the gap. We wanted to do the part of transparency. So basically what we can understand is you are the bridge between the seller of the old gold jewelry. Absolutely. And the buyer of the old gold jewelry, right? Yes, we do that. Oh, wonderful, wonderful. So Shilpa, my next question is, how does this concept work? ये MyGoldX काम कैसे करती है और ये ऑपरेशनल कैसे होता है? See, what happens is first the sellers come to us, they list their products with us. Okay. And then the buyers can check the list. उनको जो requirement है वो देखकर हमसे connect कर सकते हैं. Okay. And then they can get the desired jewelry from us. So a person who wants to buy the second-hand gold jewelry can come to you. Absolutely, they can come to us. They can check our WhatsApp catalog. Okay. Where the sellers list their products about the gold jewelry that they want to sell. Okay. And the buyers can select from that. We absolutely first check the authenticity of the product before listing. Okay. We have a set of testing that we do. Parameters that we do, and then we list the products. So the buyers connect with us to shortlist their interested products. So you post your products on your WhatsApp catalog only. Yes. You do not have a website. We have a website, but we regularly update our WhatsApp catalog. Okay. So Shilpa, my next question to you is, how does this business model work? ये MyGoldX कैसे काम करता है और शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पर होता है और किन लोगों को MyGoldX के बारे में जानकारी होनी चाहिए? ऑलवेज से कि MyGoldX एक ब्रिज की तरह काम करता है. तो जो सेलर्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं. They list their products. Where do they list their products? So they give it to us. We list it on our WhatsApp catalog. Okay. Also, we update on our website, that is mygoldx.com. Okay. And then the buyers can come and check the WhatsApp catalog. Okay. And see what they like and get in touch with us. Oh, we do the process of authenticity to check the validity of the gold that comes. So जितना भी प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं जैसे लेंथ ऑफ द ज्वेलरी और स्पेसिफिकेशन, कैरेट, वेट, वो सब आप अपने कैटलॉग में प्रोवाइड करते हैं? We provide in the catalog. We do all the process at our back end. Okay, wonderful. So that is what MyGoldX does actually. Yes. MyGoldX authorizes the jewelry and knows all the details before it goes to the market, right? Absolutely. Okay. So आप मार्केट में जाने से पहले जब भी आप ये ज्वेलरी को मार्केट में लेके जाते हो, जब भी आपको ये सब जो मिसलेनियस काम होते हैं ये इन सब के स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिटेल्स क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी ज्वेलरी आती है तो सबसे पहले हम उसका हॉलमार्क चेक करते हैं. वाह. हॉलमार्क नहीं होता है तो उसे हॉलमार्किंग कराई जाती है. Okay.
सेकेंडली उसका वेट, उसका कैरेट क्या है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी आती है जो बहुत एप्ट स्टेट में नहीं है, जैसे कुछ टूटा हुआ है, कोई पीस टूटा हुआ है, Okay. तो वो कस्टमर कहते हैं कि वो रिपेयर कर दीजिए हमारे लिए। Okay. तो हम रिपेयर करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, एंड देन वी पैकेज इट इनटू अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट। वाह, तो जब भी आप रिपेयर और रिफर्बिश करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे कोई मार्क रह गया होगा या डेंटिंग कोई उधर में कुछ रह गया होगा जो कि जब कस्टमर को वापस मिले हु वांट्स टू बाय इट उनको ऐसा दिखेगा? नहीं, ये बहुत ही प्रोफेशनल टीम हमारे साथ काम करती है, ओके। जो इस काम को करने के लिए वेल इक्विप्ड है। तो वो बहुत ही अच्छे से इसको किया जाता है, जैसे एक न्यू ज्वेलरी आपको मिलेगी वाह। वैसे ही वो पुरानी ज्वेलरी, वो कहने के लिए पुरानी है क्योंकि वो एक सेलर हमें दे रहा है, हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं, ओके। बट इट इज एज गुड एज न्यू ज्वेलरी दैट यू गेट फ्रॉम द मार्केट। वाह, वाह। सो शिल्पा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है ये लोग, कहाँ पाए जाते हैं ये लोग, और who are those people who select second hand jewelry? ओके, सो हमारी टारगेट ऑडियंस दो हैं बेसिकली। Okay. जो एक सेलर्स है जो अपनी पुरानी ज्वेलरी सेल करना चाहते Okay. हैं, जब वो वापस उन रिटेल स्टोर्स में जाते हैं तो उन्हें उनका राइट वैल्यू नहीं मिलता है। वो हमेशा मेकिंग चार्जेस के नाम पे कि पुरानी ज्वेलरी आप लाए हैं तो बहुत सारा डिडक्शंस करते हैं, तो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वैल्यू दैट दे गेट, सो दे कैन कम टू अस फॉर द बेस्ट वैल्यू। सेकंड, हमारे बायर्स हैं Okay. जो खरीदना चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी, बट बिकॉज ऑफ द हाई मेकिंग चार्जेस वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं Okay. रिटेल स्टोर से खरीदना। सो वो जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें मेकिंग चार्जेस बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता, तो वो विन विन हो जाता है फॉर द सेलर एंड बायर। Oh wow. So they both can come to So us. seller gets the exact value of their gold, of the second hand gold, and the buyer doesn't have to pay any single rupee of Of the making charges. making charges. Oh wow. And do you charge any service charge for this transaction? See, basically we charge 100 rupees per gram, वो हमने अपना स्टैंडर्ड फीस बनाया है, ट्रांजैक्शन फीस, Okay. एंड उसके अलावा कोई भी चार्जेस, हिडन कॉस्ट नहीं है। So by that we understand कि अगर 10 ग्राम की ज्वेलरी है तो आप ट्रांजैक्शन फीस उस ज्वेलरी की सिर्फ 1000 रुपीज ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। ओह वाओ, सो So वो कस्टमर को बहुत ज्यादा कम है इफ यू कंपेयर इट टू द मेकिंग चार्जेस जो आपको पे करना पड़ता है। Wow. पर ग्राम आप 1000 रुपए तक पे करते हैं, मे बी मोर। ओके, तो यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन में आप हमें फीस पे करते हैं अराउंड 1000 रुपीज। द मोस्ट मिनिमम मेकिंग चार्ज का 1/10 भी नहीं लगता ऑलमोस्ट। एब्सोल्युटली अभिषेक। Oh, that is great. Wow. How do you authorize the jewelry? How do you authenticate the jewelry? And how do you make sure that people are safe when they buy the jewelry from a client who wants to sell it? यहाँ पर बीच में आपका क्या रोल होता है ऑथेंटिसिटी के मामले में? How do you make sure that this jewelry is super good for people who are buying it? See, we work with appraisers. We have a team of appraisers who do this work for us. See, सबसे important होता है हॉलमार्किंग, कैरेट एंड वेट। Okay. तो वो हम हमारे अप्रेजर्स के वाया चेक करवाते हैं, एंड उसके बाद ही वो ज्वेलरी लिस्ट होती है। तो शिल्पा, एक चीज हमें बताइए कि आप जब भी ज्वेलरी को टेस्ट करवाते हैं तो आज भी क्या वही फॉर्मेट है जो काला रंग का एक पत्थर आता था जब भी हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे ज्वेलरी स्टोर में, तो देयर यूज्ड टू बी अ स्क्रैच टेस्ट उसको बोलते हैं, हम सब ने वो देखा हुआ है। वो हम सब ने देखा हुआ है, तो वो काले रंग के पत्थर में घिसते थे और वो कुछ केमिकल डालते थे, तो आज भी वही टेस्टिंग प्रोसेस है? सी, जो अप्रेजर्स हैं वो इस प्रोसेस से इक्विप्ड होते हैं। Okay. उन्हें ये आता है करना, बट आजकल एक्सआरएफ मशीन्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वो एक बेस्ट वे है टू चेक दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दी गोल्ड की वैल्यू। ओके, तो एक्सआरएफ मशीन्स क्या इतने ट्रस्टेबल हैं कि उसका एग्जैक्ट कैरेटेज बता पाए? आप जितने भी ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स देख लीजिए इंडिया में या बाहर, सब लोग एक्सआरएफ मशीन्स को ही यूज करते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मतलब मशीनरी है Okay. यूज करने के लिए। ओके, सो शिल्पा, आप ये बताइए कि ये जो सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी का जो मार्केट है ये कितना बड़ा है? व्हाट इज द मार्केट साइज और व्हाई आर पीपल ऑप्टिंग फॉर सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी? मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ओके। जो अभी बहुत ग्रो करेगा आने वाले समय में। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण ये है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 70 प्लस जा चुका है, 80 के पास पहुंचने वाला है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय। ओके। प्लस विंटेज ज्वेलरी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। वो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है, और मिलती है तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में, एक्सपोनेंशियल हाई प्राइसेस में मिलता है, बिल्कुल। एक्सपोनेंशियली हाई प्राइसेस में मिलती है। तो ये दो कारण बेसिकली हैं। एक तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और विंटेज ज्वेलरी की डिमांड भी मार्केट में लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कर रही है कि हम विंटेज ज्वेलरी का कलेक्शन करें। तो आपको अब क्या लगता है कि जैसे ये जो पॉनिंग है ये बेसिकली पॉनिंग कल्चर है और यूएस में काफी सालों से देखा जा रहा है, तो अब इंडिया में इसका इतना लेट आने का क्या मुख्य कारण आपको लगता है कि हो सकता है? और इंडिया का सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी मार्केट आपको किस तरीके से दिखता है कि हाउ इज इट पैरेलल
aggressively going with the US market? इंडिया में देखिए जो मार्केट साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू यूएस। Okay. तो यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रस्ट की आती है, ट्रांसपेरेंसी की आती है एंड ऑथेंटिसिटी की आती है। बिल्कुल। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म से यही कोशिश करते हैं कि हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, Okay. ट्रस्ट बिल्ड करें, ट्रांसपेरेंट हमारे प्रोसेस हो ताकि ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर सकें। क्या लोग आज के डेट में सेकंड हैंड ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? मतलब एक ऐसी फीलिंग नहीं आती कि ये ज्वेलरी सेकंड हैंड है? सी ये मैं क्योंकि मैं इंडिया में ही बॉर्न एंड बॉटम हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये एक टैबू की तरह लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही है। वो अफोर्डेबल ज्वेलरी, वो पैसों को राइट वे में यूज करने में बिलीव करती है। वो ये तो जानती है कि घर में गोल्ड तो आ ही रहा है। गोल्ड तो आ रहा है, अगर आपको वही पैसे में कम दाम में ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, इफ यू गेटिंग लेस, यू पेइंग लेस एंड यू गेटिंग मोर, देन व्हाई नॉट। बिल्कुल। आज का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट हो ही बहुत चुका है। स्मार्ट है कंज्यूमर, तो इसीलिए तेजी से मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। वाह। तो आपको लगता है कि मतलब जैसा यूएस का गोल्ड सेकंड हैंड गोल्ड मार्केट है वैसा इंडिया का भी गोल्ड मार्केट जरूर बदलेगा? एब्सोल्युटली, तो मार्केट इज गोइंग टू चेंज। अब जैसे कार्स जब पहली बार आए मार्केट में सेकंड हैंड सेल करने के लिए, तब किसी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा, बट नाउ इट इज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेकंड हैंड कार सेल मार्केट। इवन गोल्ड में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ओके। लेकिन सेकंड हैंड ज्वेलरी में देयर इज अ ह्यूज स्कोप। शिल्पा, जैसे ये पूरे टोटल माई गोल्ड एक्स के कॉन्सेप्ट में मैंने ये बात कई बार आपसे पूछी है कि सेलर को किस तरीके से फायदा होता है और बायर को किस तरीके से फायदा होता है, तो आप ये हमें और थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई आता है तो उसको क्या मिलता है और ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है जो कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आए। सी ये प्लेटफॉर्म विन विन है फॉर सेलर एंड बायर। ओके। जो सेलर है उसे अपने गोल्ड का बेस्ट वैल्यू मिलता है, जो अगर वो कहीं और जाता है तो उसका वैल्यू गोल्ड का हमेशा डिडक्ट होगा। Okay. वो जाकर अपना मार्केट में चेक कर सकता है, उसे कभी भी गोल्ड का राइट प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। Absolutely. बहुत सारे मेकिंग चार्जेस के नाम पर डिडक्शंस होती है एंड बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कंपनीज अपने बियर करने के लिए आपके गोल्ड से डिडक्ट करती है। Okay. सो ये बैक एंड की चीजें जो ले मैन को नहीं पता होती। सो माई गोल्ड एक्स में हम जो भी मार्केट का वैल्यू होता है गोल्ड का वो प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे सेलर्स के लिए विन विन है एंड बायर्स के लिए विन विन क्यों है, क्योंकि उन्हें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है। जो आप बाहर से कभी भी ज्वेलरी लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। तो ज्वेलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में सबको सिर्फ जो बेस गोल्ड का प्राइस है वही बियर करना होता है। क्योंकि आज के डेट में यही देखा जाता है कि कंज्यूमर जब भी गोल्ड स्टोर पे जाता है तो वो बहुत ही परेशान दिखता है कि उसको इतना हाई मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे मेकिंग चार्जेस का तो कोई काम ही नहीं है। कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब वी एब्सोल्युटली से दैट वी कवर जीरो मेकिंग चार्जेस। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रीन या इको फ्रेंडली ज्वेलरी की तरफ इशारा करता है और ये कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है? आपको क्या आप उससे अटैच कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया फॉर आवर दिस कंसेप्ट, क्योंकि हम इसे माइनिंग को हम कम करते हैं। गोल्ड की जो माइनिंग है जो एनवायरमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, वो डेफिनेटली रिड्यूस होती है अगर ये मार्केट और ये बिजनेस लाइन ब्लूम करता है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो गोल्ड माइनिंग का जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इससे एनवायरमेंट ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट होता है एंड दैट्स व्हाई वी प्रमोट इट। ओके, वाह, ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा। और हाँ, ये बात सही है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ज्वेलरी को भी अगर इको फ्रेंडली बनाया जाए तो ये रीसेल करना सबसे आसान तरीका है। शिल्पा, ये सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी के मार्केट में आपको कॉम्प्लेक्सिटीज क्या दिखता है और चैलेंजेस क्या दिखता है आने वाले दिनों में? सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट बिल्ड करना कस्टमर के साथ, क्योंकि जहाँ पे आप एक स्टोर में जा रहे हैं और एंडलेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्लेड में, डिजाइन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर आप जब सेकंड हैंड ज्वेलरी आते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि हम कैसे इसकी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करें, हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट हैं देखने के लिए, हम कैसे सिलेक्शन करें। तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कन्विंस करने में कि आप जो खरीद रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, वो बहुत सही है जो आपके पास जा रहा है जो गोल्ड। पर ये बात जरूर है कि एक स्टोर से अगर एक बायर खरीद रहा है तो उससे काफी कम कलेक्शन आपके प्लेटफॉर्म पे मिलता है। डेफिनेटली, वी कैन नॉट डिनाई दैट। पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सालों में ऐसा होगा कि आपके पास भी उतना ही कलेक्शन हो जाएगा जितना एक स्टोर में होता है? डेफिनेटली, वो ये सच है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हम लोग ज्यादा पीसेस। एंड सी
आपको डिजाइन वगैरह तो देखने को मिलता है, बट हम्म। मगर ऐसा एक वर्ग है, ऐसा एक कस्टमर बेस है जो अफोर्डेबल ज्वेलरी खरीदना चाहता है, हम्म। वो आपको कभी भी एक रिटेल स्टोर में नहीं मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट ही अलग है, बल्कि रादर मैं ये बोलूंगा कि माई गोल्ड एक्स एक ज्वेलरी स्टोर है ही नहीं। जी नहीं, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो अपना पुराना सोना बेचना चाहते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, और जो अफोर्डेबल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं हम उन्हें ऑफर करते हैं ये पीसेस। तो बेसिकली मैं ये समझूं कि माई गोल्ड एक्स एक तरीके का गोल्ड प्लेटफॉर्म पे, गोल्ड ज्वेलरी प्लेटफॉर्म पे एक ओएलएक्स ही है। यस, एब्सोल्युटली। इसको बोलना बहुत गलत नहीं होगा। नहीं। पर पर आपने जितना भी हमें एजुकेट किया उससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि शायद वहां पर जब भी कोई सेकंड हैंड ज्वेलरी खरीदता है वो उसके लिए ब्रांड न्यू ही होती है मोटा मोटी। एंड ब्रांड न्यू होती है क्योंकि हम जो डिलीवरी एक्सपीरियंस देते हैं उस बायर को, ओके। वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। ओ वाओ। सो अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे या हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आप पढ़ेंगे तो यू विल नो हाउ हैप्पी द कस्टमर्स आर with the service that they get at the time of delivery. ओ वाओ। So they get a very unique delivery experience. तो जब कस्टमर आपसे अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो नए स्टोर पे जैसे जाता है वही एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी वैसे बॉक्सिंग मिलती है ज्वेलरी की? आई थिंक उससे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड वाव एक्सपीरियंस होता है। ओ वाओ। क्योंकि वो हम क्या कोशिश करते हैं ना कि वो कस्टमर स्टोर पे नहीं जा रहा है, उसको वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो फीलिंग नहीं मिल रहा है। सो दे डोंट फील दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, so we work an extra edge on that. We try to give them a very beautiful delivery experience. वाओ वाओ, दिस इज समथिंग न्यू आई थिंक दैट माई गोल्ड एक्स डज, राइट? Yes, yes. और क्या माई गोल्ड एक्स जैसे कोई और भी प्लेटफॉर्म है जो ऐसा काम करते हैं? See, as of now इंडिया में तो नहीं है, बट यूएस में ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है। तो इंडिया में आपको लगता है कि आप पायनियर करेंगे इस चीज में? हम पायनियर कर रहे हैं और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें सक्सेस पाएंगे थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। वी आल्सो बिलीव दैट। थैंक वंडरफुल यू। वंडरफुल। तो आप एक चीज बताइए कि जैसे आपके अपने कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि उन्हें गोल्ड बाइंग सेलिंग कैसे प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, या आपका क्या रोल है, माई गोल्ड एक्स का क्या रोल है इस पूरे इकोसिस्टम को रिवाइज करने में और हेल्प करने में कि कस्टमर और ज्यादा एजुकेटेड हो, तो ये प्लीज हमें बताइए। देखिए अभिषेक, जब हमने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था तब हमने रियलाइज किया कि कस्टमर्स को बिल्कुल भी गोल्ड का बेसिक्स का आइडिया नहीं है। जैसे कि हॉलमार्किंग क्या होता है, जैसे कि बीआईएस मार्क आपको कहाँ देखना है, जैसे कैरेट वेट प्राइस को कैसे अफेक्ट करता है। तो जो कस्टमर है वो बस जाता है स्टोर में, खरीदता है और आ जाता है। तो उसे नहीं पता है कि उसके साथ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर उससे अमाउंट चार्ज किया जा रहा है गोल्ड ज्वेलरी के नाम पे। तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा फोकस है कि हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें एडुकेट करें। तो हमारे कंटेंट से हम हमेशा उन्हें एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। उससे होगा क्या कि जब वो एडुकेट होंगे तो वो उनको जानकारी होगी कि गोल्ड के बारे में, एंड देन ओनली वो अपने गोल्ड को ज्यादा खरीद पाएंगे या उनको सेल करना है तो राइट वे में सेल कर पाएंगे। ओके, तो आप लोगों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आप कैसे बताते हैं कि ज्वेलरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आप कैसे एजुकेट करते हैं? मोड क्या है आपका? हमारा जो कंटेंट है वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडुकेट करते हैं अपने कस्टमर से कनेक्ट करने का। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे या जो हमारे पास आते हैं कुछ अपने डाउट्स लेकर, कंसर्न लेकर, हम उनके साथ बैठते हैं, पूरी बातें डिस्कस करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि वो एक बहुत ही सिक्योर जगह में है और किस तरह से उनकी ज्वेलरी को चेक किया जा रहा है। तो उनके एकदम सामने ट्रांसपेरेंटली किया जाता है। तो शिल्पा आप एक बायर्स के लिए फिर से एक लास्ट बार बताइए कि आपको लगता है, आपको खुद ऐसा फील होता है कि सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी एक अच्छा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है? जैसे कि जब एक नई ज्वेलरी खरीदते हैं वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं, तो सेकंड हैंड गोल्ड बाइंग ज्वेलरी ऑनेस्टली एक अच्छा आइडिया है? ये बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। वो इसलिए क्योंकि आप जितना पैसा का गोल्ड आप खरीद रहे हैं उतना आपके घर में तो एज इट इज जा रहा है। इफ यू आर बाइंग 10,000 रुपीज गोल्ड पीस, दैट इज गोइंग इन योर हाउस, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं है, एंड देन दैट इज अप्रिशिएटिंग एवरी नाइट। So you're paying 10,000, but another 6 months down the line, 1 year down the line, or maybe more, the value is only appreciating. और I don't think कि ऐसा कोई एसेट है जो कि immediately खरीदते ही हर दिन हर रात को उसका वैल्यू बढ़े। There is no depreciation in gold. Wonderful. So this is a good investment. It's a best investment. You should invest in gold, and if it is second hand gold, you're saving a lot of money
on making charges and other hidden costs. So you're only paying for the value of the gold, और वो जो भी वैल्यू आपका अप्रिशिएट करने वाला है. तो आपके पास मेरा जैसे अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी आती है उन सब में क्या क्या चीजें आती है आपके पास, मतलब अगर एक कस्टमर आए तो क्या खरीदने आए, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 4 5 मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं या सेलर्स सेल करना चाहते हैं, तो बायर्स के लिए क्या मैसेज दे सकें कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते सबसे ज्यादा अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट्स हमारे गोल्ड चेन्स होती हैं. Okay. और वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड वे में भी ट्रांजैक्शंस क्लोज होते हैं. Okay. क्योंकि उसमें कुछ हॉलो नहीं होता है, जैसे Okay. बिल्कुल भी कुछ भी हिडन चार्जेस अंदर नहीं कुछ होते भी उसमें जैसे लाख भरा Hidden हुआ नहीं product- होता है, hidden हिडन material नहीं अदर होता. मेटल नहीं होने के चांसेस Okay. ज्यादा होते हैं. हम्म. तो वो सबसे ज्यादा आते हैं. चेन और क्या आता है आपके पास? चेन आते हैं, बैंगल्स आते हैं, इयररिंग्स आते हैं. Okay. आई थिंक सारे तरह के ज्वेलरी आइटम्स अवेलेबल होते हैं. तो बेसिकली हम ये समझें कि जब भी कोई अगर नया ज्वेलरी खरीदना चाह रहा है और फिर अपने कुछ पैसे बचाना चाहता है तो एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे उससे पहले आए जरूर. सी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. हम्म. लास्ट मंथ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जिनको अपनी बेटी की शादी करनी थी. ओके. सो उन्हें किसी तरह से हमारे चैनल के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला. हम्म. तो उन्होंने हमें कनेक्ट किया. Okay. और हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा गोल्ड ज्वेलरी का सेट था. Okay. तो उनको वो पसंद आया. उन्होंने उनको अपनी बेटी को गिफ्ट करना था. सो उन्हें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं मिले. Wow. जो सेलर थे उन्होंने उनकी कंडीशन को देखते हुए उनसे एब्सोल्युटली जो उस दिन का गोल्ड प्राइस था Wow. वही सिर्फ चार्ज किया. एंड हम लोगों का जो ट्रांजैक्शन फीस था हम लोगों ने उनसे वो लिया. एंड ही वाज वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी. उनको वही ज्वेलरी पीस 30 to 50% हायर रेट में मिल रहा था मार्केट में. Wow. एंड ही वाज वेरी सैड at that time, but when he left our place, he was very happy and he blessed us so much. So we really felt the power of My Gold X that Wow, day. wow. And that inspired us more to work towards it. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हमेशा वही लोग आपके कस्टमर होने चाहिए जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, या जो अच्छे पैसे वाले लोग भी हैं वही नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत उनका ब्राइट फ्यूचर है और वो ऑलरेडी दे बिलोंग टू गुड फैमिलीज. Okay. बट स्टिल दे प्रेफर टू गेट विंटेज ज्वेलरी एंड ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बिकॉज दे वांट टू सेव ऑन मनी Wow. and invest the money on other more better financial aspects. तो बेसिकली अगर ये समझे तो माई गोल्ड एक्स है सबके लिए. It is for everyone. We are the go-to platform for anyone and everyone. वाह. तो इससे इनकम क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, ये प्लेटफॉर्म हर कोई यूज कर सकता है See- जिससे पैसे बचाने हैं. Absolutely. Gold Wow. सबके लिए and gold is pure. जितना पुराना सोना है उतना अच्छा सोना होता है, ऐसा हम मानते हैं और ये सच भी है. बिल्कुल. मतलब वो उतना कम माइनिंग में गया है, बिल्कुल. उतना कम रिफाइन हुआ है, उसमें और कम मेटल मिलने के कम चांसेस हैं. Wow. तो उसकी जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है कैरेट की, वो बहुत ज्यादा उम्दा होती है. बहुत बढ़िया. तो ये सबके लिए है. बट ये आपको कंसेप्ट समझना और इनकलकेट करना मार्केट में वो चैलेंज है. और हम उसको डे टू डे लाइफ में अपने पॉडकास्ट से, अपने चैनल से, अपने कंटेंट से उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. वाह, थैंक यू सो मच. अब शिल्पा मुझे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कि माई गोल्ड एक्स का विजन क्या है. आप कल माई गोल्ड एक्स को कहाँ देखते हैं और कहाँ सोचते हैं कि कहाँ पहुंचेगा? माई गोल्ड एक्स को हमें पैन इंडिया के अलावा हम इसे ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं. Okay. ये गो टू प्लेटफॉर्म हो सबके लिए, whoever wants to buy the or sell the old gold jewelry. So ये गो टू प्लेटफॉर्म बने ऑन अ ग्लोबल लेवल. तो आपको लगता है कि कल के डेट में मेजर कंट्रीज लाइक जैसे जो गोल्ड पॉकेट्स है, दुबई है और यूएस है, वहाँ पर भी आपके प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमारा वही प्लान है. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. So you'll see in coming years My Gold X on a global platform. वाह, दैट साउंड्स एक्साइटिंग. Yeah, thank you. शिल्पा, आप ये बताइए कि आप कोलैबोरेशन किसके साथ कर सकते हैं और किसके साथ कर रहे हैं आने वाले दिनों में? See, we are open to collaborations. We can team up with appraisers. Okay. They can work with us. We are already working with many appraisers. Okay. So they can collaborate with us. Retailers can collaborate with us who are unable to provide good value to their customers. Mhm. तो हम उनके साथ भी collaborate कर सकते हैं. ओके. So we are तो open to आप collaborate. डायरेक्टली रिटेलर्स से भी गोल्ड खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं? Yes, अगर वो unable हैं अपने, उनके पास अगर कस्टमर आ रहे हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं. और आपको लगता है कि बैंक्स जो कि ऑक्शन में ज्वेलरी निकालते हैं वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकते हैं? एब्सोल्युटली. हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हमें लोन चाहिए, हमारी जो है गोल्ड रख लीजिए. बट तो हम उन्हें कनेक्ट करवा देते हैं विद द अप्रोप्रिएट बैंक्स जो ये
उन्हें हेल्प कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच शिल्पा। मुझे आज ऐसा लगता है कि आज माई गोल्ड एक्स के बारे में मुझे बहुत कुछ डिटेल्स पता चला, और ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है अगर कोई सेकंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी में काम करना चाहे। सो थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू थैंक सो यू। मच अभिषेक फॉर हैविंग मी, थैंक यू।